Good morning, student. Welcome to English class once again. The book Snapshot, Class 11th, chapter name A Summer of Beautiful White Horse. This is part 3rd of the same chapter. Last time we read about the hiding the horse. Aram and Murad hid the horse in the barn of Fat Vagian, where the horse had oats and alfalfa as its baits. When Aram asked Murad about how long ago Murad started riding, Murad replied, until that morning. Then Aram asked, are you telling truth? Murad, of course not. If we are found out, that is what you are to say. I don't want both of us to be liars. You know we started riding this morning. तो जब उसने पूछा कि कब से तुम घोड़ा चला रहे हो, तो मुराद ने जवाब दिया, आज सुबह तक। क्या तुम सच बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं। अगर हम दोनों पकड़े जाते हैं तो जो तुम कह रहे हो यह सच हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। तुम बस इतना जानते हो कि हम राइडिंग आज सुबह से शुरू कर रहे हैं। देन एरम सेट, ऑल राइट, ठीक है। एरम ने क्या कहा? सही है। एरम आस्क्ड, हाउ डू यू डू दिस? Murad replied, not easy to get the horse. First it wanted to run. This is R-U-N, run wildly. But I have a way with the horse. Remember this line, I have a way with the horse. मुराद इस लाइन को बार बार रिपीट करता है। I have a way with, I have a way with. Remember this. नेक्स्ट ही सेज हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी। तुम ऐसा कैसा कर लेते हो? जब एरम ने पूछा, मुराद ने कहा, यह इजी तो नहीं है हॉर्स को समझना। सबसे पहले हॉर्स बिल्कुल अगर वो दौड़ना चाहता है तो जंगलियों की तरह दौड़ना चाहता है, लेकिन मुझे उसे कंट्रोल करना आता है। हॉर्स मुझे समझते हैं। एरम एंड मुराद स्टार्ट डिस्कशन ऑन द सेम टॉपिक। हाउ डू यू डू इट? एरम, मुराद, I have an understanding with a horse. तुम ऐसा कैसे करते हो? मेरे और घोड़े के बीच एक अंडरस्टैंडिंग होती है। एरम, but what sort of understanding? Murad, a simple and honest one. Aram, well, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. Murad, you are still a small boy. When you get to 13, you will know. घोड़े को समझता हूँ, लेकिन किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है? एक सिंपल और ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग होती है हम दोनों के बीच, ठीक है? मैं भी उस अंडरस्टैंडिंग को घोड़े के साथ रखना चाहता हूँ। तुम अभी छोटे बच्चे हो, मुराद ने कहा। जब तुम 13 के हो जाओगे तो तुम सीख जाओगे। नेक्स्ट, एरम एंड मुराद वेंट होम। एरम एट हार्टी ब्रेकफास्ट। बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट एरम ने उस दिन घर पर किया। इन द आफ्टरनून व्हाट हैपेंड? अंकल खसरो केम टू हिज हाउस. He had coffee and cigarettes. He sat in the parlor doing SSR. SSR means sipping, smoking and remembering about old days. वो SSR करने लगे। John Byro arrived at the same time. He is an Assyrian, but he knows Armenian very well. वो Assyrian है लेकिन he knows Armenian. वो Armenian language भी अच्छी तरह जानता है। He had coffees and tobacco given by the mother of Aram. He told the mother of Aram
about the white horse that had been stolen last month. उस घोड़े के बारे में बताया कि उसका घोड़ा पिछले महीने चुरा लिया गया था. It irritates Uncle Khosrow and he shouted. इससे अंकल खसरो इरिटेट हो जाते हैं और वो शाउट करने लगते हैं. It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse? यह हार्म नहीं है, किसी तरह का हार्म नहीं है. घोड़े का खोना भी कोई खोना होता है. क्या हमने अपनी जमीन ने अपना घर नहीं खो दिया? तो घोड़े के खोने के ऊपर क्यों रो रहे हो? He said this. John Byro replied, that may be all right for you, a city dweller, but what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? तुम्हारे जैसों के लिए सही है जो इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन मुझ जैसे एक सरी के लिए क्या होगा? बिना घोड़े के कभी कोई सरी रहता? सरी, अ मैन who does small toils with the help of horse. जो छोटे छोटे काम घोड़े की मदद से करता है. Uncle Khosrow shouted again. Pay no attention to it. John Byro. I walked 10 miles to get here. John Byro said. मैं यहाँ 10 मील चल के आया हूँ. Uncle Khosrow shouted. You have legs, farmer. My left leg pains me. मेरे बाएं पैर में दर्द होता है. अंकल खसरो. पे नो अटेंशन टू इट. फार्मर्स. जॉन बायरो. द हॉर्स कॉस्ट मी $60. अगर घोड़ा बिकता तो मुझे $60 मिलते हैं. अंकल खसरो. आई स्पिट ऑन मनी. दैट इज स्पिट. मैं स्पाइट करता हूँ मनी पर, ऐसा अंकल खसरो ने कहा. So the farmer stalked out of the house, slamming the doors. घर से बाहर निकल गया, दरवाजे को जोर से धक्का दे करके. Aram's mother said to his uncle, he has a gentle heart. He is homesick. वह एक gentle heart है, वह homesick है. उससे ऐसा तुमने नहीं कहना चाहिए था. अंकल खसरो से ऐसा कहा. Farmer went and Aram arrived to Murad's house. तो फार्मर चला गया तो Aram मुराद के घर पहुंच गया. Murad sitting under a peach tree, he was trying to repairing the hurt wings of young robin. He was talking to the bird. Aram वहाँ पहुंचा, उसने देखा कि वो पीच ट्री के नीचे, मुराद पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ है. वह एक रॉबिन के घायल पंखों को रिपेयर कर रहा है और बर्ड से बात कर रहा है. मुराद. आई विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड. मैं तुम्हें ले जाऊंगा 1 साल तक राइडिंग पर, ऐसा बोल रहा है. एरम. वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर. क्या हम हॉर्स को 1 साल तक रख सकते हैं? Murad. What? Shouted loudly. What? Are you inviting a member of the Garolian family to steal? The horse must go to its real owner. क्या तुम गैरोलियन फैमिली के एक मेंबर को चोरी करने के लिए कह रहे हो? घोड़ा अपने रियल ओनर के पास जरूर जाएगा. Aram asked it when? Aram ने पूछा कब जाएगा? मुराद. In 6 months at the latest. लगभग 6 महीने के आसपास. मुराद. Threw bird. The bird fell twice on the ground, but at last, a third effort, it flew away in the sky. After this next point, for 2 weeks, every morning, Murad and Aram took the horse. They rode on it, one by one. When Aram's turn comes, the horse leaped over the grapevines, threw him in the ground, and it ran away freely. But Aram hoped to ride one day like Murad.
2 हफ्तों तक यही चलता रहा। हर सुबह घोड़े को लाते, घोड़े के ऊपर सवारी करते। मुराद की बारी आती तो मुराद को वह उसी तरह से ग्रेप वाइन्स के ऊपर से दौड़ाते हुए उछलते हुए ले जाता, उसे नीचे गिरा देता और अपना भाग जाता। ऐसा घोड़ा डेली किया करता था। और एरम हमेशा विश करता था कि एक दिन मैं एरम घोड़ा चलाना सीख जाएगा। सो वन मॉर्निंग, इट इज द इंसिडेंट ऑफ वन मॉर्निंग when Murad and Aram coming together to the to the horse riding vineyard, उस घोड़े को छुपाने के लिए एरम और मुराद जा रहे थे। So then Murad and John Byro met with Murad and Aram met with John Byro. Murad said to Aram, I have a way with the farmer. You can see the line once again, I have a way with the farmer. With horse था या with farmer हो गया है। एरम के मना करने के बाद भी मुराद जॉन बायरो के पास गया। He wished good morning and John Byro studied the horse carefully and asked what is its name. इसका नाम क्या है, ऐसा उसने स्टडी करने के बाद से पूछा। मुराद टोल्ड माई हार्ट, मुराद ने बताया कि इसका नाम माई हार्ट है। इन आर्मेनियन, माई हार्ट इन आर्मेनियन, आर्मेनियन भाषा में, आर्मेनियन लैंग्वेज में उसने ऐसा बताया। जॉन बायरो रिप्लाइड, वेरी अ लवली नेम, बहुत सुंदर नाम है। नाउ दे वेंट टू द फिटवेजियन वाइनयार्ड, और फिर वहीं से फिटवेजियन वाइनयार्ड की ओर चल पड़े। लेकिन इससे पहले कुछ और डिस्कशन भी हुआ। लेट्स सी दैट क्या डिस्कशन हुआ था। जॉन बायरो, आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन वीक्स एगो। मे आई लुक इनटू हिज माउथ। तो जॉन बायरो ने कहा, मैं कसम खा सकता था यह घोड़ा वही है जो कई हफ्तों पहले चुरा लिया गया। क्या मैं इसके मुंह को देख सकता हूँ? सो जॉन बायरो स्टार्टेड स्टडिंग द माउथ ऑफ द हॉर्स टूथ टू टूथ, एक एक दांत उसने चेक किया। एंड देन ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी। Yet the horse is a twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. तो ये बात जॉन बायरो ने कही। मैं कसम खा लेता अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता कि यह घोड़ा मेरा है। मैं ये कसम खाता कि यह घोड़ा मेरा है, लेकिन मैं तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारी फैमिली का फेम एक ऑनेस्ट ईमानदारी के लिए बहुत अच्छी तरह जाना जाता है, जो मैं भी जानता हूँ। फिर भी यह घोड़ा क्या है? मेरे घोड़े का ट्विंस, जुड़वा है। उसने ये लाइन कही, रिमेंबर दिस लाइन, कि एक सस्पिशियस आदमी अपने आइज पर बिलीव करता है, अपने दिल पर नहीं। ओके, दे रिप्लाइड गुड डे सर, ही रिप्लाइड गुड डे बॉय, गुड डे यंग फ्रेंड्स, ऐसा कहते हुए तीनों एक दूसरे से विदा हो गए। नाउ द लास्ट पॉइंट, रिटर्निंग हॉर्स। अब घोड़े को रिटर्न करने की बारी आई। अर्ली इन द मॉर्निंग, in the following morning, Murad and Aram took the horse to the John Byro's vineyard and put it there. Dogs were whispering on Murad, and Murad said the same, I have a way with dogs. मुराद वही लाइन बोली कि मैं डॉग्स को हैंडल करना जानता हूँ। Murad put his arms around the horse, pressed his nose, patted it and went away. उसने उसको गले लगाया, मुराद ने घोड़े को, उसकी नाक को अपनी नाक से दबाया, उसको थपथपाया और वहाँ से चल दिया। This is the end of the play. You can see that. In the afternoon, यहाँ से स्टार्ट है। In the afternoon, John Byro came to the house of Aram. He showed द स्टोलन हॉर्स टू द मदर। उसने अरब की माँ को वो चुराया हुआ घोड़ा दिखाया जो उसे मिल गया था। डोंट नो व्हाट टू थिंक,
तुम नहीं जानते हो मैं क्या सोचता हूँ। बहुत अच्छा, क्या सोचता है देखो। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर, द हॉर्स इज बेटर टेम्पर्ड। द हॉर्स क्या है, अब ज़्यादा मजबूत हो गया, ज़्यादा स्ट्रांग लगता है, बहुत बेटर टेम्पर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो खसरो फिर इरिटेट हो गए। तो अंकल खसरो said, "Quiet, young man, quiet. Quiet, man, quiet. Your horse has been returned. Pay no attention to it." हमारा घोड़ा मिल गया, अब कोई ध्यान मत दो। सो अंकल खसरो फेवरेट लाइन, पे नो अटेंशन टू इट, एंड Murad's favorite line is, "I have a way with." Remember these two lines, okay? So this is the end of the chapter. You can see. Have a good day, dear. Best of luck.